Hello everyone, this is my YouTube channel Mr. Kumar's Life 24/7. Please like, share and subscribe my YouTube channel so that I can motivate and make more interesting videos. तो आज मैं फिर से आया हूँ निजनी नवगरत के अंदर जो क्रेमलिन है। इसमें एक म्यूज़ियम है जिसमें मैं पहले से एक बार आ चुका हूँ, लेकिन रात के टाइम आया था। उस टाइम मैं अच्छे से वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि म्यूज़ियम बंद होने का टाइम था, इस वजह से। तो यही कारण है कि मुझे आज फिर से आना पड़ा और इस बार मैं दिन में आया हूँ, तो मुझे फिर से टिकट ख़रीदनी पड़ेगी और ये टिकट पड़ेगी ऑलमोस्ट 400 रूबल की, क्योंकि मैं पूरा म्यूज़ियम फिर से घूमते हुए देखूँगा और वीडियो बनाऊँगा यहाँ की। पिछली बार मैंने पूरे म्यूज़ियम नहीं देखा था पूरी तरीके से, क्योंकि जो लास्ट वाला म्यूज़ियम था वहाँ मैंने विज़िट नहीं किया था। तो मेरी टिकट मैं यूज़ कर सकता हूँ लास्ट वाला म्यूज़ियम देखने के लिए। तो मुझे दोबारा टिकट नहीं ख़रीदना म्यूज़ियम के लिए। अगर मैं केवल लास्ट वाला म्यूज़ियम देखना चाहता हूँ तो मैं अपनी पुरानी टिकट यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ गया नहीं था, इस वजह से वो अभी भी वो टिकट वैलिड है। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं फिर से जाऊँगा, एक बार पूरा म्यूज़ियम फिर से घूमूँगा, तो इस वजह से मुझे फिर से टिकट ख़रीदनी पड़ेगी। तो फिर से टिकट ख़रीदने के लिए मुझे फिर से 400 रूबल देना पड़ेगा। और अगर मैं, जैसे आप में से कोई अगर आओ घूमने और यहाँ पे केवल आखिरी वाला जो म्यूज़ियम है जो कि रिवर साइड पे है, कोने पे, वहाँ पे केवल विज़िट करता है, तो वहाँ पे जाने की टिकट 150 रूबल के आसपास है आज के समय में। लेकिन अगर आप ये वीडियो हो सकता हो 6 महीने या 1 साल बाद देखो, तो हो सकता हो वहाँ जाओ ये वीडियो देखने के बाद तो आपको प्राइस डिफरेंट मिले, हो सकता हो प्राइस ज़्यादा हो। तो जो प्राइस मैं अभी बता रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, ये प्राइस चेंज भी हो सकती है साल 6 महीने के बाद, या हो सकता हो 1.5-2 महीने के बाद, ये डिपेंड करता है। चलिए चलते हैं फिर टिकट ख़रीदने। Физ нет английский? No. Раньше я был такой одна башня. Мне нужно следующий тоже. Можно использовать или нужно покупать другой? Другой нужно покупать. Это не работает сейчас, да? Вы прошли по нему, по этому билету? Я использую только для туда, я не был для другой башни, потому что это был 5 ночь. 8 часов. Она сказала, это скоро закрыт. Следующий будет для другой башни. Вы по этому билету, вот мы с вами в Дмитриевской башне находимся, вы прошли до Часовой? Я только был туда. И потом я вышла для домой. Вот это прошли участок, да? Да, домой. А куда сейчас хотите? Следующий, они сказали, туда тоже. И... А эта башня, она внизу, под горой. Вам нужно будет там купить билет на их выставку. Потому что этот билет, он как бы уже у вас, просрочился. Не работает, да? Нет, вам нужно было на следующий день прийти, вчера. Окей. Вы спуститесь вниз, у них там есть касса, и вы только на эту выставку купите билет. Я был только туда. И нужно, я выхожу, я Прям был по туда. дороге вниз можно. Сейчас, окей. Да. И туда тоже есть выставка, это как или нет, только был туда? Вот здесь выставка есть. И Но здесь вы должны были по этому билету пройти до этой выставки, посетить ее. Сейчас можно? По этому билету уже ничего нельзя. Нельзя. Нет. Сейчас покупать для туда еще раз. Ну, если вы хотите полностью пройти, это вам такой же билет нужен. Если вы только эту выставку хотите посетить, у них касса есть. Вниз, по дороге вниз, Касса и есть. вход, да. Да, и нужно покупать другой билет. Да, там именно только на их выставку вы попадете. Сколько стоит? 150 рублей. И 150 рублей только для. Да. Если покупать для 100, еще нужно деньги. Вы такой же, вот если купите, у вас будет стена, здесь выставка и здесь, и смотровая. Окей, можно еще раз. Не покупаем. У вас льгот нет? Льготы? Льготы что Да. такое? Студент. Нет, я не студент. Полностью пойдете. Да, 100.
полностью пойдете вы Да, по стене, да, синий туда, теперь туда. пойдете, да? Да. 400 рублей тогда. И когда закрыть это? В 7 вечера 7 закроется, вечера? да. На вход, до 8 на выход. Окей, спасибо. Вы вот с этим билетом сейчас по лестнице и наверх. Мы с вами вот здесь находимся, в Дмитриевской башне. Да. Через одну в Никольскую зайдете, Да. посетите по этому билету выставку. Окей. Здесь смотровая площадка будет, она открытая. Потом выходите в Часовой башне, выход, и вниз по улице до Ивановской. Окей. И там Нужна улица да использовать для туда, да? вот здесь по улице, улице. да, спуститесь. Окей. И посетите по этому же билету. Окей, спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. У вас туда магазин для сувенир? Да. Окей, можно посмотреть? Здравствуйте. तो अभी इन्होंने मुझे रशियन लैंग्वेज में बताया कि अगर मुझे फिर से पूरा एग्जीबिशन देखना है तो मुझे 400 रूबल देना पड़ेगा। अब अगर केवल मुझे एंड वाला म्यूज़ियम देखना है जो कि आखिरी रिवर साइड कोने पे है तो उसका 150 रूबल लगेगा, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है आपको। और जैसा कि मैंने पहले ही तय कर रखा था कि मुझे पूरा म्यूज़ियम फिर से देखना है तो मैंने 400 रूबल दिया। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुमको डिस्काउंट मिल सकता है। तो मैंने इन्हें बोला कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ फुल टाइम, तो मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और यहाँ घूमने आ रहे हैं तो आप अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लेके आइए, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा म्यूज़ियम घूमने के लिए। स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है, अच्छे से बात करेगा, कोऑपरेट करेगा, आपकी मदद भी करेगा अगर कुछ नहीं समझ में आता है, जैसे कि प्राइस में या कम्युनिकेशन में, तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को यहाँ पे इंग्लिश भी आती है। तो मैंने फिर इनसे बोला कि मुझे क्या कहते हैं ये सुवेनिरी शॉप के अंदर जाके देखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ भी देख लीजिए। तो मैंने कहा यहाँ भी आके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो सुवेनिरी है वो बेची जा रही है इस शॉप के अंदर। जैसा कि मैग्नेट है जिसमें निजनी नोगराद सिटी के बारे में लिखा हुआ है, चाय है रशियन टी जो कि निजनी नोगराद एज ए ब्रांड बेची जा रही है, बाकायदा उसमें लोगो बना हुआ है। हैंडमेड चीज़ें भी हैं लकड़ी की और चीनी मिट्टी की। ग्लव्स है जिसमें निजनी नोगराद का नाम लिखा हुआ है, ब्रांड की तरह बाकायदा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसा कि ये देख सकते हैं ये मैग्नेट्स हैं। मैंने जूम करके दिखाने की कोशिश भी की है इस वीडियो में, इसलिए इसमें भी क्या कहते हैं क्रेमलिन को दिखाया गया है मैग्नेट्स में। हालांकि कई सारे मैग्नेट्स हैं यहाँ पे जिसमें अलग अलग तरीके का लोगो बना हुआ है निजनी नोगराद सिटी से रिलेटेड। बेल्स हैं, हैंडमेड चीज़ें भी हैं, बच्चों के खिलौने हैं हाथ से बने हुए, काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन ठीक है, आप अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं या यादगार तौर पे ले जाना चाहते हैं अपने घर तो आप ख़रीद सकते हैं यहाँ पे आके। जैसे कि कप है, ये कप बहुत ही छोटा है लेकिन खूबसूरत है। और बिल्लियाँ जो कि रशिया में हर आम तौर पे हर घर में बिल्लियाँ होती हैं, तो छोटी छोटी जैसे कि खिलौने हैं टॉय टाइप का, बिल्ली का, लकड़ी का बना हुआ या फिर चीनी मिट्टी का, और मोम के भी बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कैंडल्स रखी हुई हैं कप के अंदर
कप डिज़ाइन में या बेल डिज़ाइन में। और मिनिएचर जो है क्रमलिन का टावर है उसके भी मॉडल रखे हुए हैं। मेरे ख्याल से 500 रूबल या 700 रूबल कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे कि 700 रूबल में ये है, ये भी कैंडल ही है, काफ़ी डिज़ाइनर है। इसमें भी निजी नोगा सिटी का लोगो लगा हुआ है। ये 1500 रूबल की एक कैंडल है। ये थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लग रही है, कुछ ज़्यादा ही। और ये जो बिल्लियाँ हैं छोटी छोटी अलग अलग डिज़ाइन में, ये थोड़ी सी खूबसूरत भी हैं, लेकिन ठीक है, प्राइस कोई बुरा नहीं है। यहाँ 440 में साबुन है, हैंडमेड आई थिंक। तो कुल मिला के सोनेरी शॉप है, काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये लोकली बनी हुई चीज़ें बेच रहे हैं यहाँ पे। एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है सिटी का, प्लस जो स्किल्ड आर्टिस्ट हैं उनकी आर्ट वर्क को एक प्लेस भी, एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली बाशनिया है जिसका मॉडल बना हुआ है टावर का, ये जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही महंगा है। 2800 रूबल का है ये। मुझे लगा कि उतना महंगा होगा नहीं, हालांकि है काफ़ी महंगा। जैसे कि ये वाली बिल्ली 1900 रूबल्स में है। बिल्लियाँ रशिया में काफ़ी फेमस है, लोगों को पसंद है। कुत्ते भी हैं, लेकिन बिल्लियाँ मेनली लोग पसंद करते हैं घर में रखना। सबसे ज़्यादा महंगा तो मुझे ये मिनिएचर हाउस लगा, जो कि कई डिज़ाइन में है। तो यहाँ पे जो घर रखा हुआ है छोटा सा खिलौना टाइप का मिनिएचर, 9000 का तो वही है। और फिर उसके बगल में ये जो दिख रहा है वीडियो में टावर क्रमलिन का, 2800 रूबल में है। जूम करके भी दिखा देते हैं। तो इनको अगर आप रुपीस से रूबल में या रूबल से रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप खुद से कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता हो ये वीडियो आप 1 साल बाद देखें, 6 महीने बाद देखें, तो रूबल और रुपीस में डिफरेंस हो सकता है। तो अभी के लिए हम इक्वली मान के चलते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस होता नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ 11,000 का भी है ये कासल टाइप का डिज़ाइन। और जो टावर है वो तो महंगा ही है। हालांकि रशियन लैंग्वेज में टावर को बोलते हैं बाशनिया। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बाशनिया वर्ड यूज़ करूँगा तो आप समझ जाइएगा कि ये इसका मतलब टावर है। और कप है 650 रूबल में। इसमें भी निजी नोगरत की ब्रांडिंग है, नाम लिखा हुआ है, और सिटी का जो लोगो है वो है बना हुआ, जो भी सिटी का है। बाकी तो फिर ये लकड़ी की बनी हुई बोटल्स हैं, छोटी 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 क्या, ये काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन कप छोटा है। अब ये जो कप रखा हुआ है सामने दिखा वीडियो में, इसमें लिखा है आई लव निजनी नोगरत रशियन लैंग्वेज में। जूम करके दिखा देते हैं। 600 रूबल का एक कप है। हालांकि बाहर अगर मैं कहीं और दुकान से ख़रीदूँगा ना कप नॉर्मल इसी तरीके का, बस उसमें निजनी नोगरत की लिखा नहीं होगा, ऐसे आई लव निजनी नोगरत नहीं लिखा होगा, नॉर्मल कप होगा, तो पड़ जाएगा 200 से 150 रूबल के आसपास सेम साइज़ में। लेकिन यहाँ पे इसमें काफ़ी ब्रांडिंग दी हुई है निजी नोगरत की, तो ये 600 का है। प्लस ये एग्जीबिशन के अंदर से आप ख़रीद रहे हैं, तो ये थोड़ा सा महंगा है, प्रीमियम प्राइस पे है। बहुत सारे यहाँ पे कहते हैं डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो आप अपने घर के लिए ख़रीद सकते हैं अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो। हालांकि मैंने कुछ ख़रीदा नहीं यहाँ से अभी, बट मेरे पास ये पहले से ही है रशियन डॉल, मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी, दिखने में अच्छी लगती है, अलग अलग डिज़ाइन और शेप में है। बाकी यहाँ पे बुक्स भी रखी हुई हैं। फिर वही मैग्नेट आ गया यहाँ पे। मैग्नेट लोग हाँ अधिकतर शॉप में मिल जाएगा, टूरिस्ट स्पॉट में
यहाँ पे आई थिंक ये कॉमन है, किसी भी शहर में जाइए आप तो आपको मैग्नेट मिल जाएगा आराम से। और बुक्स हैं रशियन लैंग्वेज में जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया कि मैं पढ़ूँ किस चीज़ की बुक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर पढ़ भी लूँगा तो पूरी बुक तो मैं ख़रीदने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मुझे रशियन आती नहीं है पढ़नी अच्छे से। हालांकि रशियन बुक्स होती काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, काफ़ी पोएटिक बुक्स हैं इनके पास, स्टोरी टेलिंग बुक्स काफ़ी सारी हैं। रशियन पोएट को वैसे भी काफ़ी फेमस हैं। अब मेरा मन कर रहा है मैं जल्दी से देखूं, रिकॉर्ड करूं और निकलूं यहाँ से, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मैंने देखी नहीं है ठीक से। अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे से रिकॉर्ड कर लूँ, ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, मुझे लगे कि मुझे दोबारा फिर से आना चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाह रहा हूँ दोबारा, जब तक कि कुछ बहुत ही यूनिक ना आ जाए यहाँ पे देखने के लिए। हालांकि ये है रशियन चाय जो वीडियो में दिख रही है, और रशियन चॉकलेट्स इसमें लिखा भी है ईवान चाय। आई थिंक अगर मैं रशियन ठीक से पढ़ पा रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा है ईवान चाय। और ये अलग से है, अलग तरीके के एनिमल्स दिखाए गए हैं इसमें। ईवान चाय फिर से। हालांकि चाय की यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। स्वीट्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे, जो कि स्पेशली रशिया में पॉपुलर है। चलते हैं अब हम धन्यवाद। पक्का तो अब मैं सोच रहा हूँ कि तुरंत ऊपर चलूँ सीढ़ी से और वीडियो बनाऊँ। हालांकि ऊपर से व्यू बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं भी ये भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना जूम करके वोल्गा रिवर का एक वीडियो ले लेते हैं। कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं वोल्गा रिवर, जो मैं जूम करके दिखाने की कोशिश की है मैंने। काफ़ी खूबसूरत है। किसी दिन मैं आऊँगा तो वोल्गा रिवर के पास का वीडियो बनाऊँगा। हालांकि अभी बर्फ़ जमी हुई है, तो अधिकतर एरिया में केवल और केवल बर्फ़ ही जमी दिखेगी। बाकी तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एरिया रात में कैसा दिखता था और अब दिन में कैसा दिख रहा है। दिन में भी खूबसूरती होता है ये जगह। चलते हैं अंदर अब। Здравствуйте. Более. Что? Спасибо. Право? До Никольской башни. Ага. В Никольскую заходите смотреть выставку. Выходите, потом дальше идете до Часовой башни. В Часовой башне спускаетесь вниз. Спасибо. Поняли, нет? Чуть-чуть понял. Нет, чуть-чуть. Один башня, теперь следующий башня, третий башня, не знаю, улица используют, да? Никольская, да. Потом Часовая и вниз. Спасибо. तो अभी यहाँ की जो कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी इस म्यूज़ियम की, इन्होंने मेरे से कहा कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, फिर दूसरा म्यूज़ियम है, फिर उसके साथ तीसरा म्यूज़ियम है आउटसाइड। मुझे इतना समझ में आया है नीचे जाने पे ढलान के बाद, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है।
तो मैंने कहा हाँ, मुझे समझ में आया है कि पहला म्यूज़ियम, फिर दूसरा म्यूज़ियम, फिर तीसरा वाला आउटसाइड है। तो अब मैं ये जो म्यूज़ियम के अंदर का साइड है टावर के लिए जाने के लिए, तो मैं वहीं जाने की कोशिश करता हूँ बाय वॉक। और ये दीवार है जो बनाई गई थी इस क्रेमलिन के चारों तरफ से, उसी पे मैं चल रहा हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दीवार ही है जिस पे मैं चल रहा हूँ, काफ़ी चौड़ी चौड़ी। तो यहाँ पे मैं ज़ूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लेन का मॉडल भी रखा हुआ है। अब ये रियल प्लेन है कि नॉर्मल मॉडल है ये मुझे नहीं पता, लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है। इस म्यूज़ियम के अंदर ये भी रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि ये मेमोरियल है, स्टैचूज़ हैं यहाँ पे खूबसूरत। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में दिखाऊं, क्योंकि अंदर काफ़ी चौड़ी चौड़ी जगह दीवार है ये, जिस पे मैं आराम से चल पा रहा हूँ। समझिए 500 साल पहले ये बनाया गया है, तो 500 साल पहले बड़ा हार्ड वर्क किया होगा बनाने के लिए इसको, वो भी यहाँ पे रशिया में जहाँ पे ठंड खूब रहती है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी है, कई सारे गवर्नमेंट, और क्या कहते हैं, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन भी बना हुआ है जहाँ पे लोग आते रहते हैं अपने बच्चों के साथ टहलने के लिए। गर्मी में मैं आया हूँ यहाँ पे और ये बड़ा ही खूबसूरत है। टहलने के लिए खूबसूरत तो ठंडी में भी है, बस फ़र्क इतना है कि ठंड बहुत लगती है। अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है और मुझे लगता है कि जो भी देखेगा वो बोर हो जाएगा, क्योंकि मैं आराम आराम से यहाँ पे चल रहा हूँ, तेज़ भाग नहीं सकता हूँ क्योंकि बर्फ़ है और काफ़ी स्लिपरी है जब बर्फ़ होती है तो। और ये काफ़ी बड़ी जगह है, क्रेमलिन की जो बाउंड्री है, काफ़ी टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। ये भी बच्चों का गार्डन है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी जूम करके। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे छोटे छोटे गार्डन है यहाँ पे, और इन गार्डन का अपना ही एक विशेषता है। अब उतना डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अभी मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई जो कि मुझे ठीक से बता सके। ये दूसरा टावर है। यहाँ भी जाना है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। आउच।
अरे यार चढ़ना बड़ा खतरनाक है यहाँ तो। तो ये टावर है, इस सीढ़ी से मैं ऊपर आया हूँ। ये ऊपर पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो यहाँ वार्निंग लिखी कि विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगी, ये देख सकते हैं। टोपी उड़ सकती है, टोपी मफलर, तो सावधानी बनाए रखें। बाकायदा इस बैनर को भी इसलिए बांध के रखा गया है। तो अगर आप एग्ज़िबिशन के इस हिस्से वाले टावर में आते हैं तो बड़ा सावधानी बरतिएगा, नहीं तो हवा उड़ा के ले जाएगी मोबाइल भी। अगर ठीक से मोबाइल नहीं पकड़ेंगे तो मोबाइल भी गिर सकता है नीचे, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। और ठंड तो फ़िलहाल ही है, लेकिन आना बनता है इस पोर्शन में, जो कि मैं पहले नहीं आ पाया था रात के टाइम, क्योंकि यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है शहर का। बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है यहाँ पे। भलाई इसी में है कि नीचे निकल चले अब। मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक टावर है, नाम लिखा हुआ है रशियन और इंग्लिश में। ये वाला टावर जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं देखने लायक। और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये गहरा बहुत ज़्यादा है और ये बंद है, और इसमें 2 ठो विंडो हैं छोटी छोटी। एक के अंदर आर पार झांक के मैंने देखने की कोशिश की अपने मोबाइल के कैमरे से, क्योंकि मुझे लगा कि मैं भी चेक करता हूँ मेरा कैमरा कितना अच्छा है। और दूसरे जो विंडो है उसमें मैंने सोचा जूम करके देखूं मोबाइल से, आर पार दिखेगा कि नहीं ठीक से, तो उतनी अच्छी तरीके से दिखा नहीं। अब चलते हैं आगे तरफ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जब यहाँ पे अंदर की तरफ हूँ तो अंदर से अगर मैं बाहर का वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो कैसा दिखेगा व्यू, ये कोशिश थी मेरी। हालांकि मुझे काफ़ी ये इंटरेस्टिंग लग रहा था दूर से वीडियो रिकॉर्ड करने में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह, फिर कहीं कहीं विंडो से सही व्यू मिल रहे थे जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं, और कहीं कहीं विंडो से उतने अच्छे व्यू आ नहीं रहे थे, क्योंकि लोकेशन ही वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। जैसे कि यहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ का तो रिकॉर्ड करना बनता है। और जहाँ का उतना इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर मैंने उसे टाइम लैप्स लगा दिया ताकि वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। हालांकि यूज़ तो यहाँ भी किया है, लेकिन उतने फास्ट नहीं है, 5K 10K की स्पीड पे। ये किसका स्टैचू है देखने का? ये काफ़ी मैंने जूम करके देखने की कोशिश की है कि कैसा दिखेगा ऊपर से नीचे, और मैं अपना कैमरा भी चेक कर लूँगा इसी बहाने कि मेरे मोबाइल का कैमरा कितना अच्छा है। अगर मुझे कहीं का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैंने उसे नॉर्मल स्पीड पे दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पे बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा था, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करते हैं वो भी नॉर्मल स्पीड पे। लेकिन अगर आप यहाँ खुद आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंस। वाकई में वर्थ इट है एक बार आना यहाँ पे, समर में भी विंटर में भी, क्योंकि विंटर में एक अलग व्यू रहता है, समर में एक अलग व्यू रहता है, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। विंटर में कितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत समर में रहेगा ये। स्टेयरकेस के बारे में और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आराम से चलना है स्टेयर पे, नहीं तो स्लिप करके गिर भी सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ही स्लिपरी है और खड़ी चढ़ान है ये एक तरीके से सीढ़ियाँ। और जब बर्फ़ पड़ी हो तब तो खड़ी सीढ़ी और ख़तरनाक होती है। जैसे कि अभी वहाँ पे मैं इससे पहले वाले टावर में था जहाँ पे विंड खूब फास्ट थी,
तो वहाँ पे उतरते टाइम मुझे बड़ा ही ध्यान रखना पड़ रहा था, इसीलिए मैंने मोबाइल भी बंद कर दिया था कि कहीं अगर मैं मोबाइल रिकॉर्ड करते उतरूँगा तो गिर भी सकता हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत छोटी हैं, एकदम क्या कहते हैं, ढलान वाली सीढ़ी है, स्ट्रेट। ये वाली भी सीढ़ियाँ सारी ढलान वाली हैं। हालांकि कई सारे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो टावर है वो बंद है परमानेंटली टूरिस्ट के लिए, तो वहाँ तो मैं जा नहीं सकता, तो मैंने केवल नॉर्मल रिकॉर्डिंग की इसीलिए, और बाहर का व्यू दिखाने की कोशिश की, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, खूबसूरत व्यू। ये अच्छा लग रहा है दिखने में भी, और मुझे लगा था कि मुझे ये ज़रूर रिकॉर्ड करना है ये पोर्शन, इसीलिए मैं दोबारा फिर से आया दिन के टाइम। तो एक चीज़ समझ में, दिन में एक अलग व्यू होता है और रात में एक अलग होता है, और दोनों का ही अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि दोनों ही खूबसूरत लगते हैं। रात में लाइटिंग होती है तो और अच्छा लगता है दिखने में। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जूम करके भी दिखाता हूँ कैसा दिख रहा वीडियो में। तो अब मैं पहुँच गया हूँ एग्ज़िट गेट के पास, जहाँ से मैं इस टावर से बाहर निकल सकता हूँ, और फिर मैं जाऊँगा लास्ट म्यूज़ियम देखने के लिए, जो कि लोकेटेड है क्रेमलिन के लास्ट गेट पे, जो कि रिवर साइड वाला गेट है वहाँ पे। तो वहाँ जाने के लिए मुझे पहले इस टावर से नीचे उतरना पड़ेगा, फिर सड़क से चलते हुए जाना पड़ेगा वो वाले एग्जीबिशन में, जो कि मेन गेट के पास है पीछे साइड पे, जो कि रिवर के पास वाला जो मेन गेट है वहाँ पे लोकेटेड है एक एग्जीबिशन। तो अब मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए यहीं से मुझे एग्जिट लेना है नीचे। और ये जो देख सकते हैं आप वीडियो में, मैंने दिखाने की कोशिश की है कि यहीं से मुझे जाना है नीचे उतर के, पूरा ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, यहीं से होते हुए मैं आखिरी म्यूज़ियम वाले जगह पे पहुंचूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाने से पहले मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ये पूरी जगह की, जो बाहर के साइड है, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्लेस है। तो मैं एग्जिट लेता हूँ यहाँ से, ये है गेट, यहाँ से बाहर निकलना है। Здравствуйте. Выходит ли, да? Окей, спасибо. Да. Мне кажется, мы там надо было сколько? 2 там. Недели 2-3 точно. तो अब मैं एग्ज़िट लेने के लिए, इस टावर से बाहर निकलने के लिए, जब मैंने गेट खोला तो मैं ये एक दूसरे टावर के अंदर आया जहाँ से मुझे बाहर निकलना है। तो ये जो 2 महिला कर्मचारी हैं यहाँ पे एग्ज़िबिशन में काम करती हैं, ये यहाँ पे आपस में बात कर रही हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि ये टावर से यहाँ से क्या बाहर निकलना है, तो इन्होंने कहा हाँ। तो मैंने सोचा बाहर निकलने से पहले यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, इसका भी एक वीडियो बना लेते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पेंटिंग काफ़ी बड़ी है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है म्यूज़ियम में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इन पेंटिंग्स के नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है रशियन लैंग्वेज में, और मैं इसे सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा कि इसमें सीधा लिखा हुआ है कि क्रेमलिन के ऊपर 1 से ज़्यादा बार अटैक किया गया है, लेकिन कभी कोई भी जो इंट्रूडर्स हैं ये कभी टेक ओवर नहीं कर पाए, कभी जीत नहीं पाए, और यही क्लियरली लिखा हुआ है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी रशियन उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है, तो मैंने गूगल ट्रांसलेटर यूज़ किया है, जिसके थ्रू मुझे ये समझ में आया। вас для следующей басня. Ивановская. Сейчас выйдете на улицу, Ага, от нас налево ага. и вниз. Вниз, налево. Вниз по лестнице, вниз Ле- на улицу. Вот сейчас вот так вот выйдете на улицу. Ага. И влево. Вниз по лестнице. Идем. Я чуть-чуть понятно. Да. Вот туда.
Туда. Туда, использую, Вот да? туда, да. Вот туда, да. Туда. Туда, да. Билет туда. Нет, вот по этой лестнице, вот лестница, да. И прям на нее выйдете. Дверь там написано будет. А, когда буду Вот, туда? вот сюда и Сюда. вниз спуститься. Ту- Вот по лестнице. Вот она лестница идет, да. По ближайшей лестнице. А, туда он напишет, Вот да? она, вон она лестница начинается, вон. Да, да, да. Вот. И туда, и прям на нее выйдешь. Там, да. Окей, спасибо. Какой басня это называется? Ивановская. Ивановская басня. Окей, спасибо. До свидания. तो यहाँ पे ये महिला कर्मचारी जो हैं म्यूज़ियम की, इन्होंने मुझे बताया है कि कैसे मुझे पहुँचना है जो आखिरी पार्ट है म्यूज़ियम का, उसको देखने के लिए। तो अब मैं बस नीचे उतर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक और थोड़ा सा पार्ट है इस फ्लोर पे, बस उसको थोड़ा सा देखना है। फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली क्या कहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचूँगा, एग्ज़िट गेट के पास। लेकिन उससे पहले ये एक और फ्लोर है जहाँ पे मैं पहुँचने वाला हूँ, और यहाँ पे थोड़ी पेंटिंग वगैरह उसको देखूँगा। तो इस फ्लोर पे जो है नॉर्मली बुक है, आई थिंक बुक्स वगैरह हैं रशियन लैंग्वेज में, और सुवेनीरी रखी हुई है, और एक महिला कर्मचारी है यहाँ पे म्यूज़ियम से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रशियन बुक्स हैं जो कि रशियन लैंग्वेज में है, तो मैं तो इनको पढ़ नहीं पाऊँगा, तो कोई मतलब नहीं बनता इनको ख़रीदने का। अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आपका मन है ख़रीदने का तो आप ख़रीद सकते हैं। हालांकि ये जो डेट वाली चीज़ है जो सामने रखी हुई दिख रहा है, जिसमें लिखा है रशियन लैंग्वेज में निजनी नोगरत, एक तरीके का एक कैलेंडर है जिसमें लिखा है मंथ और डे और अदर थिंग्स, और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सही है, ये भी छोटा सा पार्ट है म्यूज़ियम का जहाँ पे सुवेनीरी हैं। अब चलते हैं अपन नीचे। इन सीढ़ियों से उतरते टाइम ज़रा ध्यान रखने का है कि जो रॉड लगी हुई है काले रंग की, इसको पकड़ के उतरें, क्योंकि अगर जल्दीबाजी में उतरेंगे तो गिरने का डर है, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है सीढ़ी की स्पाइरल शेप में, तो थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन फिर भी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 500 साल पुराना है ये। तो अब यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँगा और मैं जाऊँगा क्या कहते हैं म्यूज़ियम के दूसरे पार्ट में, जो कि आखिरी पार्ट है उसमें। और ये मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे एक दरवाज़ा है जिस पे लिखा है कि ये केवल स्टाफ के लिए एंट्री है, तो इसमें केवल कर्मचारी अंदर जा सकते हैं। और ये बाहर जाने का रास्ता है राइट हैंड साइड पे, जिसमें काला रंग का गेट है और लिखा है एग्ज़िट। तो अब बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर कैसे चल के पहुंचना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।